देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अंतिम चरण में है। त्रिपुरा की धनपुर सीट में दोपहर 1 बजे तक 59.62% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि बॉक्सानगर सीट में 1 बजे तक 61.61% मतदान हुए। 4 बजते ही वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इन सीटों पर सीपीआईएम और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। त्रिपुरा मोथा ने पहले ही दोनों सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। त्रिपुरा के बॉक्सानगर विधानसभा सीट माकपा विधायक शमसुल हक के निधन के बाद से खाली हो गया था, जबकि धनपुर विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक के विधायक पद से इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुआ है। कांग्रेस ने भी त्रिपुरा के उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया था। वहीं धनपुर सीट पर माकपा नेत वाम मोर्चे से कौशिक चंदा और बॉक्सानगर विधानसभा सीट से मिजान हुसैन मैदान में हैं। इनके मुकाबले के लिए भाजपा ने बॉक्सानगर से तफज्जुल हुसैन और धनपुर से बिंदु देवनाथ को मैदान में उतारा है। इनके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। आज इन 2 सीटों में कुल 93.234 मतदाता अपने वोट डाल रहे हैं। इनमें बॉक्सानगर से 43,087 और धनपुर से 50,147 लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए बॉक्सानगर में कुल 51 मतदान केंद्र और धनपुर में 59 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण उपचुनाव संपन्न कराने के लिए सीएपीएफ की 15 कंपनियों को तैनात किया है। বক্সনগরে এসব প্রশ্ন ওঠে না, কারণ কি আজকে যে দিন থেকে ইলেকশন ডিক্লেয়ার হয়েছে সেই দিন থেকেই এখানে পিসফুল আছে এবং আপনাদের মধ্য দিয়েও আমি আপামর জনগণকে অনুরোধ করব, আমরা একই সাথে থাকবো। বক্সনগরের মানুষ কারোর ঝগড়াঝাটি না হয়, কারোর সাথে কারোর যেন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। গণদেবতাকে অনুরোধ করে বলবো, আপনার ভোটাধিকার আপনার নিশ্চিন্তে মনে প্রয়োগ করুন। আমরা কারোর সাথে যেন আমরা কোনো কিছু ঝগড়াঝাটিতে যাতে আমরা না যাই, কারণ ভোটটা হলো গণতান্ত্রিক পবিত্র অধিকার। সেই অধিকার প্রয়োগ করতে যেন কেউ কাউকে বাধা না দেয় আমি অনুরোধ করব। আমার পার্টির যারা কর্মীরা আছে কর্মীদের উদ্দেশ্য বলবো, আপনারা শৃঙ্খলাভাবে যাতে মানুষ ভোট দিতে পারে, যার জন্য আপনারা সহায়তা করেন, সহযোগিতা করবেন। এই তো আধা ঘন্টা হয়ে গেছে এখানে দাঁড়িয়েছি। হ্যাঁ আধ ঘন্টায় ভিড় তো সকাল থেকে ভিড়। আমি সকালবেলায় এসেছিলাম, ভিড় দেখে এখন আবার আসলাম। এখন ভিড়টা কম দেখা যাচ্ছে, সকালবেলা থেকে অনেক ভিড়, 6টা থেকেই ভিড়। একবার চলে গেছিলেন? হ্যাঁ ভিড় দেখায়, এখন আবার এসেছি। আবার কিরকম দেখছেন, অবস্থা কিরকম? অনেক ভিড়। অনেক ভিড়। সিকিউরিটি কিরকম আছে? ভালো আছে, কোনো ঝামেলা নেই? না কোনো ভালো। আমি সকালে আইছি, ভিড় দেখে আবার বাড়িতে গেছি, এখন আবার আইছি। একবার চলে গেছেন বাড়িতে, আবার ফিরে এসেছেন। আচ্ছা, এখনো ভিড় আছে? আছে মোটামুটি, এখন দেখছেন। সিকিউরিটি তো, এমনি কোনো ঝামেলা নেই? না, ঝামেলা নেই। দিদি কতক্ষণ হয়েছে আইছেন আপনি? আসি এখন এসে হয়েছে? হ্যাঁ, ভিড় আছে মোটামুটি, এখন ভিড় আছে। কিন্তু ছায়ার ব্যবস্থা তো করছেন? হ্যাঁ, সার ব্যস্ত আছে। ছায়ার ব্যবস্থা করছেন আপনার শান্তিপূর্ণভাবে সব? হ্যাঁ। দাদু বয়স কত? হাসাসি। আচ্ছা, 85। তো ভোট দিছেন? শান্তিপূর্ণভাবে হইতেছে নি? হ্যাঁ। কোনো অসুবিধা হইছে না তো? না ঠিকঠাক আছে? আরে কেউ অসুবিধা করবো কেটা? I am joined by the district election officer of Sipahi Jala district, and let's know from him how is the situation. Sir, welcome to Northeast Live. Thank you so much. So, sir, how is the situation? How is the polling going on, and what is the polling rate till now? Till 1 o'clock it is 60%. So as you can see that after 6 hours it is 60%. So most probably the rate is very good, and everything is quite peaceful. There peaceful environment is also there, and we have not heard any incidents of violence till time today. So till now everything is peaceful, no violence. But opposition had alleged that we were speaking with the opposition candidate from Dhanpur. He alleged that some of the places they could not give their polling agent inside, and there was one violence in Bhaksanagar most probably last night. So any report on that? I have got information regarding this Boxnagar incident. One person has been minorly injured, and he was treated and was discharged at the same time, and now is no problem in case of Boxnagar. And regarding that, polling agents are not going to the polling station. So we have requested them many times. I have also called Shri Jiten Chaudhary and also Shri Banulal Shah that please give us the name of these polling agent that you suspect that there might be some restriction of them entering into the polling station, but we don't get the name from them. Although in few polling stations they have not reached,
Again in the morning also we have tried with the candidate that please send us the name, and few names have also come and we escorted them to the polling station. But as of now only allegations have been come, but they have to cooperate with us so that the polling should take place in a free and fair manner. After many persuasion also we don't get the name from them. और इस वक्त हमारे सहयोगी पिनाकी दास हमसे जुड़ रहे हैं। पिनाकी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप किस मतदान केंद्र में हैं और वहाँ मतदान किस तरह से चल रही है, ज़रा हमें दिखाएं। देखिए, फ़िलहाल हम बॉक्स नगर के एक पोलिंग सेंटर पे है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 79% वोटिंग ऑलरेडी हो चुका है और बाकी जो दूसरा केंद्र है धनपुर, वहाँ पे 75% के वोटिंग हो चुका है। और यहाँ पे जो मेन इशू था वो इनिशियली सुबह से वही अपोजिशन की तरफ से एलिगेशंस आ रहे थे और कल रात को इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एक अपोजिशन लीडर्स को इंजरी किया गया, तो इसके ऊपर एलिगेशन था। पर डीएम साहब से जब जो इलेक्टोरल ऑफिसर भी है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, उनसे जब बात हुआ तो उनका ये कहना है कि उनके तरफ से जो अपोजिशन लीडर्स इंक्लूडिंग द पार्टी का जो सीनियर लीडर्स है उनको फ़ोन किया गया और जो एलिगेशन है कि उनके सपोर्टर्स और जो पोलिंग सेंटर में जा नहीं पा रहे उनका पोलिंग एजेंट्स, तो उसका नाम दे ताकि, और कुछ जगह पे दिए हैं, बाकी जगह पे उन्होंने दिया नहीं। पर फिलहाल पूरा शांति से सभी दोनों जो पोलिंग सेंटर्स है दोनों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेफली एवरीथिंग इज़ पीसफुल। और उनका ये कहना है कि अपोजिशन की तरफ से एलिगेशंस तो आ रहे हैं, पर जब नाम का मांग किया गया तो वो दे नहीं पाए। तो और जो इंसिडेंट हुआ है कल रात को, ये छोटा इंसिडेंट था, मेजर कोई इंसिडेंट नहीं था। हालांकि जो रूलिंग सत्ताधारी पार्टी है उनका यही कहना है कि अपोजिशन की तरफ से एलिगेशन के लिए एलिगेशन लाते हैं क्योंकि उनका ग्राउंड पे कोई सपोर्टर्स नहीं है। और उनका ये भी मांग है कि 80% से ऊपर ये पोल होगा और करीब उसी तरफ जा रहे हैं अभी। और हाफ एन आवर का टाइम बाकी है और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ऑलमोस्ट खाली है और साथ दो पोलिंग सेंटर्स आप देख सकते हैं, दोनों ही खाली है, ऑलमोस्ट 80% के करीब जा रहे हैं वोटिंग। जी पिनाकी, और आधा घंटा का समय बाकी है। वोटर्स का मूड जिस तरह से आपने भी दिखाया है हमको, मतलब बुज़ुर्ग तक वहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग भी हमें नज़र आए जो फुटेज हमने देखी। वोटर्स का मूड आपने दिन भर देखा, कैसा दिखा आपको? देखिए, वोटर्स पूरे स्फूर्ति के साथ निकले थे वोट देने के लिए। सुबह से महिलाओं का भीड़ काफ़ी ज़्यादा था उनका, और इससे महिला का वोट जब होता है तो और ज़्यादा होता है तो उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि वोटर में क्या मूड है। सेफ्टी नहीं होगा तो महिलाएं कम निकलेंगे, पर यहाँ पे काफ़ी मात्रा में महिलाएं, हर वोटिंग सेंटर में हमने देखा महिलाएं। हालांकि सुबह जब शुरू हुआ था तो कुछ देर वोट रुका भी था कुछ जगह पे, क्योंकि अपोजिशन के जो पोलिंग एजेंट्स थे वो नहीं थे, तो इलेक्शन कमीशन के तरफ से वो कोशिश किया गया उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ उनको लाया जाए। कुछ जगह पे लाए भी उन्होंने, उनका यही दावा है। पर ज़्यादातर जगह पे जहाँ पे वो एलिगेशन कर रहे हैं कि वहाँ जा नहीं पा रहे, वहाँ से नाम भी नहीं दे पा रहे थे जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से। पर बाकी सिक्योरिटी जो है अलग अलग 3 रिंग सिक्योरिटी है, और इनर सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का है। और अपोजिशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे जब पूछा गया तो उनका यही कहना है, दे आर हैप्पी, वो सेटिस्फाइड है जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है। हालांकि उनके कंप्लेन है स्टेट पुलिस के अगेंस्ट में, बहुत जगह पे उनका यही एलिगेशन है कि वहाँ पे जो सुरक्षा उन लोग आशा कर रहे थे वो नहीं मिला। हालांकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर उनका कोई कंप्लेन नहीं है। पर सबसे अच्छी बात है कि जो इस साल के फरवरी महीने में जो पोलिंग हुआ, जैसे शांतिपूर्ण हुआ, टोटल इंसिडेंट फ्री, अभी तक यहाँ पे दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में वही दिखाई दे रहा है, टोटल इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हो रहा है। और इसी के कारण 80% क्रॉस करने का उम्मीद किया जा रहा है। तो बिल्कुल 80% तक मतदान होगा, 80% से अधिक मतदान होगा, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पिनाकी इन तमाम जानकारियों के लिए।